सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नौवा। हर को नाम सदा सुखदाई। जाका सिमर अजामल उदरियो गन का हूँ गत पाई। रहाओ पंचाली का राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जिह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई। कह नानक मैं यही परोसै गही आन शरनाई। जिह नर जस कृपा निध गायो ताका पयो सहाई। कह नानक मैं यही
भरोसे गही आन शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार भाई बचित्र सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अपनी किरत कमाई विचों दसवंध जरूर कढ़िया करो। कढ़िया होया दसवंध धर्म के प्रचार वास्ते जो गुरु घरां विच लंगर चलते हैं उन्हां दी सेवा वास्ते, गुरु के महल गुरु कियां बनदियां इमारतां वास्ते, गरीब बच्चों की पढ़ाई वास्ते, बीमारां की दवाई बूटी वास्ते, गरीबां की सहायता वास्ते खर्च करया करो। सतगुरु तुरठणगे होर साडियां अपनियां बख्शिशां दे नाल झोलियां भरनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी जो बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण वाह। श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, करनौ निद आवे ताए, करनौ निद आवे ताए, करनौ निद आवे तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन पवित्र शब्द जिसका मूल पाठ सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना को आप जी ने सरवण किया है। मारू राग अंदर जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का कलाम है, पावन बाणी है, उस बाणी का ये प्रथम शब्द है ते शब्द का सरलेख है मारू महला नौवा।
ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਖਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਿਆਗਮਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ, ਅਨੁਰਾਗ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਮਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਮਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤਾਤ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਨਾਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿਆਗਮਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
मैं तुहाडे संग्राम नूं, तुहाडे युद्ध नूं देख रहा सां ते तुहानूं लड़दियां जो लोग देख रहे सन, मैं उन्हां दी बॉडी दी भाषा भी पढ़ रहा सां। जदों तुसीं मैदानी जंग अंदर तेग चलाई ना, ते तुहाडे तेग चलाउण दे तरीके नूं देख के लोगां ने दंदां थले उंगलियां ले। अज देख बेटा, अपने पोशाके वाल वेख, अपने घोड़े वाल वेख। अज तुहाडा अपना पोशाका, अपने कपड़े उन्हां सूरमिਆਂ ਦੇ खून ਵਿੱਚ रंगे ने जिन्हां नूं तुसीं मात दिता है, धरती मां की गोद विच लटाया। अज उन्हां दे खून नाल तुहाडे कपड़े रंगे होए, तुहाडे घोड़े ते भी उन्हां दे खून दीयां छिट्टां दिखाई दे रही। पर बेटा, केवल तेग चलाउणा ही सूरमे का काम नहीं है। और ये भी मैं बेनती कर दिया, दुनिया नूं तेग देण वाले बड़े आए, तेग चलाउण दा वल दस्सण वाले बड़े आए, पर केवल गुरु हरगोबिंद साहिबान जिन्हां ने तेग भी दिती ते तेग बहादुर वर्गा पुत भी मैदानी जंग विचों दिता। नहीं तो हिंदुस्तान का इतिहास कि मैदानी जंग अंदर मोह तोड़न दे लई धर्म ग्रंथ सुनाए जाते हैं, पर बाबे नानक साहब जी का घर विलखण है, जिथे तेग दिती तेग बहादुर भी दिता है। और गजब की गल है कि वो गुरु तेग बहादुर तेग चलाउणी नहीं जानते हैं, ताई ते नाम तेग बहादुर पिया। गलवकड़ी विच लह के कह लगे, बेटा अज तुसी तेग चलाई है, साडा दिल जितया। कदी तुसी किसी दे धर्म लई, किसी दे चिन्हां लई जो धर्मां दी स्वतंत्रता दा लखायक होएगा, प्रतीक होएगा, जदों उन्हां दे वास्ते तेग चला के अपने आप दी कुर्बानी दिओगे, तुहाडा अपना पोशाका तुहाडे अपने खून विच रंगिया होएगा। अज तुसीं तेग चला के साडा दिल जितया, मैदानी जंग विच लड़न वालियां दा दिल जितया, मैदानी जंग नूं देखण वालियां दा दिल जितया। पर पुत्र जी नौ निहाल जी, जदों धर्म की स्वतंत्रता दे लई तेग दा वारस होगे तो सारी दुनिया का दिल जित लोगे। अज संसार आखिर कि तेग बहादुर के चढ़त भयो जगत को सोग है सब जग भैरो। और उन्हां चिन्हां लई, उन्हां निशानियां लई जिन्हां नाल साडा कोई सिद्धांतक तालमेल नहीं है, तलोकात नहीं है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने जिथे तेग चलाई है, उथे तेग दा वारस है। और गजब की गल पता की है, कल भी मेरी कथा सी किथे, मैं बेनती कर रहा सी भी औरंगजेब दे तशद्दद करन वाले जेड़े सी, वो 3 सिखां नूं शहीद करके ये समझ चुके सी कि जिस गुरु तेग बहादुर साहब के सिख नहीं बदले, टस तो मस नहीं होए, ये तो हो ही नहीं सकता कि गुरु तेग बहादुर साहब धर्म बदल लेंगे। और कैसे असह ते अकह कष्ट सहारदिया होया इन्हां ने आपे दी कुर्बानी दी। इस तो वड्डी कोई नाम के सुख की व्याख्या होएगी। तो अज गुरु तेग बहादुर साहब भी जो नाम का सुख है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। शब्द का सरलेख है, एक ओंकार, परमात्मा एक है, भावें तेरे अंदर है, तू परमात्मा दे विच है,
पर गुरु करना तो बिना वो परमात्मा मिलता नहीं। जे रब नूं मिलना है तो गुरु जी नूं सरेंडर हो। श्रीमान भाई गुरदास साहब का एक बचन है, कह लगे जैसे तो चंपक बेल बिबद बिथार चार। चंबे की वेल हुंदी है, तुसी गुलाब का बूटा देखो, उहदियां पत्तियां में सुगंधी है, टाहनियां में सुगंधी है। भाई साहब आखदे चंबे की वेल है, चाहे कोई भी फुलदार खुशबू देन वाला पौधा है, उहदियां शाखां में सुगंधी नहीं हुंदी। गुलाब के पत्ते में सुगंधी हुंदी है। कह लगे जैसे तो चंपक बेल बिबद बथार चार। जे वासना लैनी है, सुगंधी लैनी है ना, तो शाखा तो उपर उठ, पत्तियां तो उपर जा, फुल तक पहुंच। वासना प्रगट होत फूल ही में जाए कह। वासना है, सुगंधी है, पर पत्तियां विच नहीं। तो जे पत्तियां विच सुगंधी नहीं तो यह अर्थ नहीं भी सुगंधी नहीं है। तेनू उतां जाना पड़ेगा, फुल तक पहुंचना पड़ेगा। रब है जो सब तो श्रोमणी गुरुदेव है, सब तो उपर ने। गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहब तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने का अर्थ यह नहीं है कि केवल शरीर तक सीमित रहे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने गुरु नूं मिलण दी जो निशानी दसी है, वो केवल फिजिकल क्रिया नहीं दसी कि आके मत्था टेक ते तू मिल लिया। सतगुरु आखदे ना ते गुरु कोल रहा मिलता। मैनू खिमा करियो, कई ऐसे ने सारी उम्र गुरु दे कोल बहिंदे ने, गुरु कोल नहीं हुंदे। कई ने ते कई ऐसे ने कौल फूल दे भवरे की तरह बाहरों आउंदे ने ते सुगंधी लैके चले जाते हैं। जिहड़ा डड्डू है ना जड़ विच रहिंदा है, कदी कौल फूल की सुगंधी लई। साहब आखदे गुरु केवल शरीरक तौर पर कोल बैठिया नहीं मिलता, ते गुरु केवल शरीरक तौर पर दूर गया भी गुरु नाल दूरी तय नहीं की जा सकती। पैमाना शरीरक तौर पर कोल होने का नहीं, हाजरी भरनी है। सतगुरु के बचन ने गुर सभा एव ना पाई है। गुरु की सभा इवें नहीं मिलती, ना नेड़े ना दूर, ते नानक सतगुरु तां मिलै। किवें मिलदा है? जां मन रहे हजूर। जैसे तो चंपक बेल बिबद बिथार चार। वासना प्रगट होत फूल ही में जाए कै। जैसे द्रुम दीर्घ स्वरूप देखिए प्रसिद्ध। कह लगे कभी विशाल दरख्त नूं देख, ए अंबां दी बहार है, अंब दा दरख्त ही देख कितना विशाल है, पर अंब दियां पत्तियां विच रस है, ओदियां टाहनियां विच रस है। ते तुसी आखो भी टाहनियां विच ते रस नहीं, पत्तियां विच ते रस नहीं। कह लगे जे रस लेना ते फल तक पहुंच। जैसे द्रुम दीर्घ स्वरूप देखिए प्रसिद्ध। स्वाद रस होत, स्वाद का जिहड़ा आनंद है ना, स्वाद रस होत फल ही में पुन जाएगा। फल तक पहुंच। खिमा करियो, बहुते ते पत्तियां नाल ही जुड़े होंदे, शाखा नाल ही जुड़े होंदे। जिहड़ा गुरु है वो रस है। कह लगे जिवें दरख्त के फल तक पहुंचा रस मिलता है। दो उदाहरण ते तीसरी उदाहरण है श्रीमान भाई गुरदास साहब जी की। कह लगे जैसे गुरु ज्ञान राग नाद हिरदय बसत। कोई बंदा विद्वान है, कोई बंदा सिरे का संगीतकार है, अगर जुबान नहीं होगी तो पता लगेगा। अंदर ज्ञान है, अंदर संगीत है, पर जे संगीत नूं जानना, ज्ञान नूं जानना तो उसकी जुबान तक, उसदे बोलां नाल जुड़ना पड़ेगा।
कदी भी कोई आलम आदमी, संगीतकार आदमी गूंगा देखा? गुरु ज्ञान राग नाद हिरदे विच अंदर हुंदा है, पर जानिया जाता है रसना दे द्वारा ही। विद्वान जन पिछे आके कथा तो पहला बैठते ने ते पता लगता भी इन अंदर की है। जो बोलते पता उदों लगता है, जैसे गुरु ज्ञान राग नाद हिरदय बस्त करत प्रकाश तास उस ज्ञान नूं, उस संगीत दियां धुनां नूं अरे जानन दे वास्ते जुबान चाहिए। जुबान नाल जुड़ना, बोलां नाल जुड़ना। करत प्रकाश तास रसना रसाए कह, तीन उदाहरण दे के ना ते भाई साहब पता की आखदे ने, तैसे घट घट बिखै ब्रह्म रूप, तैसे घट घट बिखै गुप्त ब्रह्म रूप। हर हिरदे विच गुप्त परमात्मा बैठा है। असीं एक जाप साहब विचों हजूर जी की बाणी विचों बचन पढ़ते हैं, कह लगे परमात्मा छिप के बैठा, अल्लाह गैब। बाबा कबीर ते जाप शब्द का शब्द है प्रोश पालन, लुक के पालन वाला, लुक के देने वाला। जिन्हों कबीर जी ने आख्या अल्लाह गैब, अल्लाह है पर छिपिया ही, अंदर लुकिया ही। जिन्हों साहब की बाणी ने इवें आख्या, शब्द तुहानू गुरु प्यारे आजाद होणगे। कह लगे दुध दिखाई दिंदा ही, पर मक्खन ते घ्यो दिखाई नहीं दिंदा है ही। अगर दुध विचों मक्खन नूं लैना है, मक्खन विचों घ्यो नूं प्राप्त करना है तो प्रयत्न करना पएगा, जतन करना पएगा। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घीया। है कोई ऐसा दुध जिदे विच घ्यो ना होए, ते है कोई ऐसा दुध जिदे विचों देखिया घ्यो मिलता होए? रिड़कना पएगा, मथना पएगा, मेहनत करनी पएगी। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घीया, ते ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। हर हिरदे विच परमात्मा है, पर जानिया किवें जाए? एक मैं बेनती करा, बहुतात लोगों ने रब नूं मन्निया है, जानिया नहीं। जाने अरे जिन्हां ने जानिया ना, उन्हां दी जीवन शैली तब्दील हो जाती। अगर परमात्मा हर हिरदे विचों नजर आ जाए, नेड़े नेड़े सबको कह, परमात्मा नेड़े है, नेड़े है, नेड़े है। मैं भी आखदा, आप भी आखदे, पर साहब आखदे गुरमुख भेद को विरला है। इस भेद नूं गुरु द्वारा कोई जानता है। तैसे घट घट दिखै गुप्त ब्रह्म स्वरूप। ते साडी अवस्था पता की है? रब नूं जानिया नहीं, मन्निया वा, इसलिए सब कुछ ओथे दा ओथे है। साहब आखदे जे रब नूं जानना ही ते जानिए प्रकाश महापुरख मनाए कह। गुरु महापुरख नूं समर्पित हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित हो। असी भट्टां दे बचन पढ़दे हां, भट्ट जी आखदे असी रब नूं लभदे रहे। बड़े अमृत बचन ने भगतां दे, जिन्हां लकबां विचों किते किते निराशता झलकदी है, ते एक जगह ते आके पूरे आशावादी ते समर्पित हो जाते हैं। भट्टां दे बचन ने रहो संत हो टोल, ये सब शाखा सन, सब पत्ते सन, रस किसे को नहीं। रहो संत हो टोल साध बहु तेरे गिठे। कह लगे ऐसा नहीं कि संत नहीं मिले, साध नहीं मिले, बड़े मिले, बड़े मिले, अज भी बहुत मिल रहे, हजारां की तादाद विच मिल रहे। भट्टां नूं नहीं मिले। और साडी बदकिस्मती है
कि साडे कोल अजिही अगवाही हुंदियां भी भटके। उन्हां कोल ते कोई मार्गदर्शक नहीं सी, पर जदों उन्हां नूं मार्गदर्शक मिले, गुरु नानक साहब जी का घर मिलिया, फिर वो भटके। असी बाबे दे हो के भी भटक रहे हैं। साहब जी दे बचन गुरु ग्रंथ साहब कि रहो संत हो टोल साधबो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्ये मुखो ए पंडित मिठे। सन्यासी मिले, तपस्वी मिले, रब दियां मिठियां मिठियां गल्लां करन वाले विद्वान मिले। एक मैं होर बेनती करदा अपनी जाती तजर्बे विचों कि रब दियां गल्लां कर लैणियां गल होर, जे रब नूं जान लैना गल होर। मैनूं खिमा करियो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। सो बोले जो पेखे आखी, ओही वो बोलते जो अखा नाल वेखते। ते जिन्हां ने वेख्या नहीं, भट्ट जी कह लगे सन्यासी तपस्ये मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिर। भिखा जी दे बच्चन ने 1 साल भटकते रहे, किने ना परचो लायो, किसे कोल जाके मन ना भतीजिया। ते पुछिए भट्ट जी तुहाडा मन क्यों ना भतीजिया? कह लगे कहते हैं कहती सुनी, ये लोगों नूं कहंदे सी आ करो आओ करो आओ करो। खिमा करियो, जिन्ना वड्डा महात्मा होए कोल रह के वेखियो, फिर पता चलेगा किन्ना कु वड्डा है। कह लगे कहते हैं कहती सुनी, रहत अवर कश अवर कमावत, मननी प्रीत मुखों गंढ लावत। रहत होर सी कहंदे कुछ होर सी। कहते हो कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो। दाने सरोते हो, बड़े बड़े विद्वानां कोल रोज कथा सरवण करदे हो कि इत्थे तक भट्टां दे लकबा अंदर निराशता नहीं कि बड़े निराश कि रहो संत हो टोल साधबो तेरे डिठ, सन्यासी तपस्ये मुखो ए पंडित मिठे। बरस एक हो फिरे कुने ना परचो लायो, कहते हो कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। ते पुछिए भिखा जी किते दात मिली रब नूं मिलन दी? कह लगे गुर दई मिलायो भिखिया। जदों असी बाबे नानक साहब जी के घर नूं आके प्राप्त हो, जद साहब ने नजर की भटकदियां नूं, बाबे नानक साहब जी का घर मिलिया ते बाबे नानक दे घरों रब नूं मिलण दी दात। असी किते जाके नहीं किया, असी किसे नूं समर्पित नहीं होए, सारियां दा विश्लेषण कीता देखिया, पर आके समर्पित होए। गुर दई मिलायो भिखिया, जिव तू रखै तिव रहो। हुण बाबे नानक दे घर आके आख्या जिवें तुसी रखोगे उवें ही रवांगे। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन। भट्ट जी जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध। जिस बापू जी का शब्द है ना, साडे तर्कवादी आखदे ने गुरु तेग बहादुर सिमरिया किवें 9 निधियां मिलदियां, ते भट्ट जी आखदे ने जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नमनित पावै। पुछियो केड़े गुरु ने? सोई रामदास गुर बल बण। वो गुरदेव ने गुरु रामदास ते की गुरु तेग बहादुर साहब अंदर वो जोत नहीं? जिस जोत का जिक्र भट्ट जी कर रहे हैं,
रिद सिव नम नित पावै। वो केड़े गुरु ने? सोई रामदास गुर बल भन। पट बल जी कह दे मिल संगत धन धन करो, जिहे सतगुरु लग प्रभ पाई है। जिस गुरु नाल मिलिया प्रभु मिलता। नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुरु पाया। रब नदर करे ते गुरु मिलता, गुरु नदर करे ते परमात्मा मिलता। यह जियो बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया। ते साहब शब्द की आरंभता करदे फरमाउंदे ने हर को नाम सदा सुखदाई। कह लगे हे भाई हरि का नाम सुख देने वाला है। तू अत दियां मुश्किलों में घिरिया होए जे नाम तेरे हिरदे विच वस जाए। मैं भाई गुरदास साहब का एक बचन पढ़िया, कह लगे जैसे वृथावंत जंत औखद हिताए हृदय। कोई बंदा बीमार है, उसनू दवाई शूट कर जाए ना, दवाई भा जाए, दवाई ਉਹਦੇ अंदर नू जच जाए, भा जाए उन्हें, तो साहब भाई गुरदास साहब के बचन ने ਉਹਦਾ रोग मिट जाता है। जैसे वृथावंत जंत औखदे हिताए हृदय। तो तुहाडा की ख्याल है कि दवाई नू पढ़िया जां दवाई नू रिपीट कीतिया दुख मिटदा? डॉक्टर कोल जांदे हो, डॉक्टर दवाई लिख के दे दे, वो जरा पर्चा लिख के दिंदा केवल पढ़ी जाओ, रोग मिटेगा? मैं आखदा गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ते आधारित कि दवाई खादिया भी रोग नहीं मिटेगा जिन्नी देर नाल संजम नहीं होएगा। भाई गुरदास साहब जी के बचन ने कि विन संजम रोगी मरै। डॉक्टर ने दवाई दे दी शुगर की, तो बंदा परहेज ना करे। खिमा करियो अज नाम बड़ा सिमरिया जा रहा है, पर जो कोल होके देखी दा परहेज कोई नहीं। अखां दा कोई परहेज नहीं, कन्ना दा कोई परहेज नहीं, वक्ती तौर पर सिमरिया जा रहा है, तारा लाइया जा रही। जैसे वृथावंत जंत औखदे हिताए हृदय। बीमार आदमी नू अगर दवाई भा जाए, बिरथा बल विमुख होए, दवाई अंदर जाए, शरीर नू भा जाए, शरीर विचों रोग नू कढ़ के शरीर नू जेड़ी दवाई है रोग मटा के सहज विच लै आउंदी है। कह लगे जिन्नी देर नाम अंदर नहीं ना गया, याद रखी आत्मा स्ट्रांग नहीं होनी। और एक मैं होर बेनती करा, विकारां विच भी बड़ा बल हुंदा है, कमजोर कर दिंदे ने बंदे नूं समाजिक तौर पर, परिवारक तौर पर। चलो नाम ही प्रगट होण विकार समाजिक तौर पर, परिवारक तौर पर, पर ज़हनीयत तौर पर जिहड़ा विकारी आदमी कमजोर हो ही जाता है। अपनी आत्मा नूं किवें समझाएगा? बीमारी चंगे भले बंदे नूं लाचार कर दिंदी है, विकार चंगे भले बंदे नूं लाचार कर दिंदे हैं। अजामल जी हजूर ने गल की है, चंगा आदमी सी, ब्राह्मण सी, विद्वान सी, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने मन्निया जगत दा पापी मन्निया। अजामल पापी जग जाने। बीमारी शरीर नूं कमजोर कर दी है, विकार मन नूं कमजोर करते हैं। बीमारी नूं दूर करने लई मैडिसिन चाहिए है, ते अंदर दी बीमारी नूं दूर करने लई मैडिटेशन चाहिए। मैडिसिन नाल परहेज ने। देखो दो शब्द ने इंग्लिश के, इको धातु तो इको जड़ तो बने मैडिटेशन ते मैडिशन। मैडिशन दे नाल परहेज चाहिए ता रोग मिटदा, मैडिटेशन नाल भी अखां दा परहेज चाहिए। ये पराया रूप ना देखण। जिस जुबान तो सिमरिया जा रहा वो किसी की निंदा ना करे, जिन्ना कन्ना नाल सुनिया जा रहा वो किसी की निंदा ना सुन, जिन्ना हत्थां नाल ये जीव कीर्तन दे
ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਜ ਅਜਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਥਾਵੰਤ ਜੰਤ ਔਖਦੇ ਹਿਤਾਏ ਹਿਰਦੈ, ਬਿਰਥਾ ਬਲ ਵਿਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜੈਸੇ ਆਣ ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨਕ ਹੀ ਕਲੰਕ ਡਾਰੈ। 6-7 ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਬੂਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਧਾਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਛੂਏ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਾਰਸੇ ਨਾ ਪਰਸੈ, ਜੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਆਨ ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨਕ ਹੀ ਕਲੰਕ ਡਾਰੈ। ਹੋਰ 6-7 ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬੂਟੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਅਨਕ ਬਰਨ ਮੇਟ ਕਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਬੂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਰ ਕਰ ਕਾਸ਼ਟ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਲੱਕੜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਂਧਨ ਕੀਤੋ ਮੂੰਹ ਘਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਈਂਧਨ ਕੀਤੋ ਮੂੰਹ ਘਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਰੀ ਦਤੀਨ ਭਾਹੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਵਸੰਦੜੋ ਸੱਚ ਸੌ, ਅਗਰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੱਬੇ ਦੁਖੜੇ ਉਲਾਹੇ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਰ ਕਰ ਕਾਸ਼ਟ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੈਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਰੂਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਰੰਚਕ ਹੀ ਆਂਚ ਦੇਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਭਸਮ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਸੜ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਨੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਤਤਵੇਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਰੂਟੀਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਕੈਸਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਮਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ।
किते गुर मंत्र तेरे हृदय विच बस जाए, गुरु दा उपदेश वाहिगुरु गुर मंत्र तेरे हृदय विच बस जाए। जन्म मरण दुख दोखन विनाश है, जन्मां जन्मां दे दुख तेरे हृदय विचों निकल जाणगे। असी साहिब दे बचन पढ़दे मेरे हीर है। गुरु रामदास पिता रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, ते जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, हर को नाम सदा सुखदाई, जां को मुश्किल अत बने। अत की कोई व्याख्या होंदी है? एक अत शब्द है जिहदी कोई व्याख्या नहीं, जिहदा कोई दायरा नहीं। कह लगे जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, ते मुश्किलों में वैसे भी बंदे दे साथ कोई नहीं खड़ता। लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्मता लगे ना, हर को नाम सदा सुखदाई। हर के नाम बिना दुख पावे। राग बिलावल गुरु तेग बहादुर से कह लगे तेरे दुखों का कारण है तेरे को नाम नहीं है, बाकी सब कुछ। और एक मैं बेनती करा, बाकी सब कुछ होए जे नाम पल्ले नहीं ना, ते सुकून ना किसी को मिलिया जे, ते ना किसी को मिलेगा। एक बचन मैं तुहाडे सामने गुरु की बानी का रखन लगा कि सुंदर सेज अनेक सुख बैरूनी तौर पर, तेरी सुंदर सेजा होए सोने दी, अनेका तेरे को सुख होन, रस भोगन पूरे, कोई ऐसा पदार्थ ना होए जो तू खाना चाहे तो तेन मिलता ना हो। एक गुरु ग्रंथ साहब की रियलिटी है। गृह सोन चंदन सुगंध, तेरा ते घर पत्थर दा ना, कह लगे सोने का तेरा घर होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हीरे जवाहरात जड़े हुए होने, लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा, लगदा इवें होए भी हर सुख तेरे कोल है, किस नाहे वसूर है, बाहरी तौर ते तैनूं किसे गल दी कोई चिंता भी ना होवे। पर साहब आखदे ने बिन हर नाम ना शांत होए, हरि दे नाम तो बिना सुख नहीं मिलना। हर को नाम सदा सुखदाई। फिर अगला पक्ष दस दें, कह लगे जां को सिमर अजामल उदरियो। पहली गल ते बंदा अजामल बने ना। अज भी असी अजामल उदरन दे गल कर दी ते पहलों उहदे पाप की गल करदे। भाई गुरदास साहब जी का बचन है कि जैसे घाओ घायल को जतन का नीको होत, बंदे नूं कोई जख्म होया, कोई चोट लगी, सहजे सहजे चोट भर जाती है, जख्म ठीक हो जाता है, दर्द भी नहीं होती, पर निशानी तो रह जाती है ना। किसी दे कोई जख्म होया, चोट हुई, जैसे घाओ घायल को जतन का नीको होत, जतन कीतिया रोग ते मिट गया, जख्म ते मिट गया, दर्द भी नहीं होती, पर लीक बन जाती है। लीक मिटत न पेखिए, जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओढ़ियत। कपड़ा फट जाए ना ते सिल के पहन लाओ, जिस जगह तो वो फटिया सी उथों तन बदन नगन हो रहा सी, हुण सिल गया। तन बदन ते नंगा नहीं हुंदा, पर एक गठ एक जोड़ ते पै गया ना। कह लगे जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओढ़ियत, नांगो तो न होए तो ठेगड़ी परेखी है। जैसे टूटो बासन सवार देत है ठठेरो, बर्तन टूट जाए, कहे दा बर्तन टूट जाए, लोहे दा बर्तन टूट जाए, कहां कंचन टुटे सार अग्नि गंड। टुटिया होया बर्तन जुड़ जाता जे, ओदे बस वस्तु पाओ, बाहर डिगदी भी नहीं, भावें दुध पा लो, भावें पानी पा लो,
जैसे टूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पर गठ ते नजर आती है ना, तैसे गुर चरण विमुख दुख देख पुन। इवें गुरु रब जो वेखदा मेरे चरणों तो टुट के ये दुखी हो गया, विकारी हो गया। रब चरणों नाल जोड़ के पवित्र ते कर दिंदा ही, पर निशानी रह जाती। अज भी अजामल की निशानी है ना भी अजामल पापी जग जाना। अगली गल बाद विच है कि निमख माहे निस्तारा, ये मत समझना भी पाप कर करके ये सोच रखिए कि अंत वेले तर जावांगे। एक तर गया, इसका अर्थ यह नहीं भी सारे तर जाते। घर नूं अग लगी होए ते कूआ पुट के अग नहीं बुझाई जा सकती। ये एक घटना हो गई। कोई बंदा बीमार सी, वो तंग आ गया, उन्हें जहर खा ली ते जहर खाद्या उहदा रोग मिट गया। इसका अर्थ नहीं भी सारी जहर खाण। एक अजामल अंत वेले तर गया, इनू इस भाव नाल मत लेना कि बेफिक्र होके गुनाह करी जाइए। हाँ जे तेरे कोल होए ने ते कोई गल नहीं, इत्थे सज्जन भी ठग भी सज्जन बन जाते हैं। मैं इनू एक होर एंगल तो भी लेना है, इच मेरी ईगो ना जाने, कोई भी अपनी ईगो ना जाने कि साडे विचों कोई ऐसा होएगा जो सज्जन वर्गा होएगा, कौडे राखश वर्गा होएगा। जिवें असीं सुनिया कोई तेल विच बंदे तलदा सी, सज्जन ठग लोगां नूं मारदा सी। अरे जे इन्ने वड्डे पापी पवित्र हो सकते ते तू क्यों नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर पिता फरमाउंदे ने, जाको सिमर अजामल उदरियो गणका हूं। कह लगे एक गणका सी जिसनू सिमर के तर गई। भाई गुरदास साहब ने लिखिया, गणका पापन होए कै पापा का गल हार परोता, महापुरख अचानचक प्लान नाल नहीं आया, सोच के नहीं आया। तुरया जा रहा सी महापुरख, रस्ते में नौजवान मिल गया। कह लगा यार धर्मशाला में रात कटनी है कोई। वो नौजवान सी, अपनी मस्ती होंदी जवानी दी, अपना एक नशा होंदा। कह लगा ओ सामने धर्मशाला ही है। फकीर चला गया सीधा सी। जो कुंडा खटखटाया तो अंदरों वेशवा निकली, गणका निकली। कह लगा ये धर्मशाला? कह लगी नहीं फकीरा, गलत जगह था। बेटी ये की है? साखी करता लिखते जो बेटी क्या ना ते अखां भर आईयां। अज तक जिन्ने भी इस दर ते आए सी, किसी ने कभी बेटी ते धी नहीं सी किया। कह लगी फकीरा एक बार फिर पूछ। कह लगा बेटी ये धर्मशाला नहीं ते की मैनू दे दसिया गया है। आखन लगी नहीं ये पापशाला है, मैं वेशवा हाँ, खिमा करियो। असी बंदे दे गुनाह वेखीए ते नफरत करते हैं, बंदे दी भैड़ी मत वेखीए ते नफरत करते हैं। फकीर वापस मुड़ लगा, अंदरों दिल विचों आवाज आई, फकीरा इहो जैनू ते तेरी लोड़ है। मैं बहुती साखी दे विस्तार विच ना जावां। कह लगा धीए क रात कटनी। कह लगी आ जाओ। सारी रात खिदमत की। ओदी दुरमत देख के भी, खिमा करियो, असी गुरमत वेख के भी विरोध करते हैं, गुरमत सुन के भी विरोध करते हैं। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनू दित सतोता, लिव लागी तिस तोते। सूआ पढ़ावत गणका तरी। गुरु ग्रंथ साहब कह लगे तोते नू राम राम सिमरदियां गणका तर गई। अगर वो तोते नू सिमर के तर सकती, तू बाला प्रीतम दे चरणा सिमर के क्यों नहीं तर सकती। गुरु तेग बहादुर पिता फरमाउंदे ने, गणका हूं गत पाई। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, पंचाली को राजसभा में
पंचाल देश के रहने वाली द्रौपदी जदों कोई सहायक ना हो, किसी ने पल्ला पकड़िया, साखी करता लिखते द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब अगे बैठे से, किसी ने पल्ला पकड़िया। मैं भाई गुरदास साहब के बचनों में एक बचन पढ़िया कि एक दिन द्रौपदी आ रही है नदी के कंढे ते अपनिया सखियां नाल, एक फकीर पानी विच नदी विच खड़ा ते कंब रहा है। द्रौपदी रुकी ते पुछन लगी ते सखियां ने कहा फकीर हुंदे ने पता नहीं कित्थों बोल पैण, कह लगी नहीं कंब रहा वा, मैं पुछा तो सही बहुत ही ठंड है, पानी में खड़ा है, बीमार हो जाएगा, अंदर दया से पुछ बैठी फकीरा तू पानी में खड़ा कंब रहे हैं, बाहर आ जा। कह लगा मैं तो निकल लगा सी पुत्री, तुहाडी आवाज हसदियां दी मेरी कन्नां विच पई ते मैं रुक गया, तुहाडे कारण रुकिया। कह लगी साडे कारण क्यों? धीओ मेरे को एक लंगोटी सी पानी के तेज बहाव विच रुड़ गई। कह लगे द्रौपदी ने सिर का कपड़ा उतारिया, उहदे दो टुकड़े किए, जद फकीर वाल सुटिया ना सबब कुदरती वह भी फकीर के हाथ में ना आया। जब दूसरा टुकड़ा सुटन लगी तो फकीर ने हाथ उता करके आख्या धीए मेरी बच्चीए ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ नंगे सिर नहीं शोभदियां। अज कल सानू कौन समझाए? हजारां का छूट पाया हुंदा है, कपड़ा असी गुरुद्वारे आके लभदे सिर ते बन्नण लई। कह लगा धीए ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ नंगे सिर चंगियां नहीं लगदियां। कह लगी कोई गल नहीं, मेरा तो केवल सिर नंगा होएगा, तेरा तो नगज कटया जाएगा ना। जो कह लगे कपड़ा हाथ में आया तो फकीर ने क्या देख धीए मेरे कोल ते केवल एक लंगोटी सी वो भी रुड़ गई। याद रखी जिदे चरणों में मैं बहना ओदे कोल सब कुछ ही, कदी मेरे नू याद करी तेनू इना दे देगा सारी दुनिया भी तेरे कपड़े उतारेगी नहीं उतरनगे। भाई गुरदास साहब जी के बच्चन ने द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है। मैं कई बार सोचता जेडे ग्रंथी सिंह ताबिया बैठे होंगे ने तुहाडे नालों बहुत गरीब, कई बड़े अमीर भी होंगे ने पर बहुतात गरीब होंगे, पर फिर भी उन्होंने को अरदास कराते हो क्यों? वह कारण है कि जिदी ताबिया बैठे ने वो कर किसी गल की कमी नहीं है। साहब आखते उन्होंने सिमर पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, परमात्मा की याद आई, ताको दुख हारियो करुणा में। करुणा में परमात्मा ने वह दुख दूर कर दिता। किसी तरह का भी तेनू दुख है, तू जीवन तो डिग चुकिया, नाम पवित्र कर देगा। तेनू अत दियां मुश्किलां ने नाम तेरियां सारियां मुश्किलां हल कर देगा। तेरी बेपत्ती हो रही है, नाम नू सिमर, तेन इज्जत मिल जाएगी। जे नर जस कृपा ने दगायो, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कह लगे मत समझी कि द्रौपदी ने याद किया दुख हरिया, अजामल ने याद किया ओदे पाप मिटे नहीं प्यारिया। जिस जिसने भी वाहिगुरु जी नू याद किया ताको भयो वाहिगुरु ओदे वास्ते सहायक होए। कहो नानक मैं यही भरोसा, ये भरोसा लैके गही आन शरण आई। वाहिगुरु जी मैं तेरी शरण पकड़ ली, पता किवें? सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, ते बाहें गहे की लाज अस नानक दास। मैं तेरी शरण पकड़ ली, मेरी भी पत रख, मेरी भी इज्जत रख। ऐसे ही भाव अंदर इन्हां शब्दां नूं गायन करके प्रभु की शरण मानस तौर पर ग्रहण करिए। इन्ने को बचन प्रवान करने, सतगुरु जी के बचन हिरदे विच रख लैने। समूह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संगतां दा गुरु ग्रंथ साहिब पिता दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।